Yeah, long, Hi. long time. What's happening? Yeah. This is happening, nothing else. Just How's it? resting now. Yeah, I can just share about this journey because ये actually मेरे लिए एक dream ही था ना. Like I never thought कि this might be even possible at like one point of life. Yeah, But yeah, it's happening now. So yeah, very excited. Like थोड़ा बहुत nervousness तो है, but excitement भी बहुत है. yeah. So yeah, everything वैसे ही सब चल रहा है. Yeah, correct. So I Yeah. welcome you here and I'm so happy to have you on board and to actually interview you because I have seen your journey from feeling anxious, from feeling lost, from feeling confused and don't know where your life is going, what is happening with you. And now reaching here, it's like a big, big story for me also. Yeah. So I quote your example a lot of times because it's also whenever I think about you, it also makes me feel very happy and satisfied that you are able to reach here and you were able to do all the work which was required during that phase of your life. So I'm so excited to interview you today. So if you can just introduce yourself and share a bit about you. Where are you from? Okay. Whatever. Yeah. Okay, so hello, my name is Shivani, and I live in Pune and I work in SG Analytics as a data analyst right now. So I've been working there for 2.5 years now. Yeah, so and now I'm ready to welcome my first baby. Yeah, so that's that for now. So before we started working together, what challenges were you facing, whether it's in your mindset, emotions, or external reality, whatever it was? Yeah, Yeah. so yeah, everything what you just said. Yeah, so all the challenges were there. Like, first of all, the main thing was I was going through a very tough phase in my life. Like, as you know, I was going through a divorce, and also there were like mentally some issues like that I realized later when I talked to you. There were many, many limiting beliefs and many things that were holding me back. Like I was holding myself back because of those things. So once I discussed all those things with you, like I didn't even realize कि ये सब चीजें हैं जो मुझे पीछे like खींच रही है या not allowing me to go ahead in my life और just एक stuck हो जाना जैसे लगता है ना वो चीज थी. And I didn't even realize ki why were these things causing. But then when I talked to you and when I had like sessions, like we had so many sessions and like different programs, not only like one program. I enrolled to like various programs of yours. So yeah, and actually I just wanted to start from the beginning. So I found you randomly on we both used to follow one academy. So yeah, so from there I got your number and we connected. Actually, I also tried two, three other people, but I didn't found that connection or comfortableness, like that place where I can feel safe. So yeah, with you, I found that, and then we started connecting. In the first call, actually, I felt like okay, I'm secure here, like I'm good hands. So yeah, so since then, we so actually at that time, first of all, the physically अगर कुछ चीजें होंगी तो वो तो ये था कि आई वॉज गोइंग थ्रू द डिवोर्स. तो वो एक चीज बहुत मेजर हो रही थी. एंड ऑल्सो सो मेनी थिंग्स वर चेंजिंग इनसाइड मी, सो नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इंटरनल स्ट्रगल्स वर ऑल्सो हैपनिंग at the same time. And I didn't have job then, nothing. Like I didn't have like I used to think like there were so many limiting beliefs about myself ki how will I get any job because I didn't work for like 2 3 years before that. So yeah, that's why I had all these doubts about myself. So yeah, so these all things were there. But later on, we worked on each point one by one, and we went step by step, and then here we are today. I'm in a very happy relationship. Very like I'm happy with, like with my current husband, and he's very caring and everything what I always wanted in my life partner. And now we are ready to welcome our first baby. So yeah, so this is a very very like big thing, life altering thing for me. The and I'm very glad, I'm very happy. See, when I was in that phase, na, it was very difficult, obviously. But now when I look back, I feel like okay, जो हुआ अच्छा ही हुआ, because then I would have never gotten here and I would have never found this life and seen this light. Nothing would have happened. But the most important thing was that I got you as a guiding light. So yeah, so showing the proper way to march ahead and think. Like सबसे important thing मेरी मेरी यही हुई कि मेरे जो thinking patterns थे
उस पे हमने बहुत ज्यादा काम किया है, विच एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली इट्स नॉट ए इजी थिंग, लाइक हम सब मतलब इजीली बोलते हैं कि स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली एंड एवरीथिंग, but it's very hard to like just start doing that. Taking actions and working on yourself is very difficult. So yeah, so you were always there to tell me what I was doing wrong, or what should I do, or how to like just surrender to the process and go ahead. So yeah, so that was the big what do you say, blessing for me. Yeah. Yeah. So, So yeah, so that's that for now. yeah. So if I still ask about the mental challenges you were facing during the phase when you reached out to me, can you put some on that also? Okay, so first mental state, like first issue that I was facing was I had zero confidence about myself. I couldn't think better of myself. Like I used to think "Yeah, I'm good for nothing," because maybe because of past experiences and things I was feeling or made feel by the people around me, whatever the reasons were. But yeah, ये बहुत important चीज थी that I did not have any confidence back then, and I used to doubt everything that I do, or I was very scared of how things will unfold. Like uncertainty की एक डर डर रहता है ना, वो वाला वो एक चीज थी, and also this thing कि how will I be able to cope, like even if anything good happens by chance, like I used to think कि अगर गलती से कुछ अच्छा भी हो गया तो will I be able to handle it, will I be able to face it and accept it in my life, ऐसा ये सब डाउट्स बहुत थे मेरे में. सो या ये बहुत बिग इश्यूज थे. सबसे इम्पोर्टेंट तो नो कॉन्फिडेंस एट ऑल. If you can put some light also on the fact how what were the challenges in your relationship and how you used to feel about yourself. ओके, सो इन माय रिलेशनशिप्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी चीज कि डे वन से कुछ चीजें सही नहीं थी, बट आई यूज टू इग्नोर इट बिकॉज बिकॉज वही एक कंडीशनिंग होती है ना, दैट यू हैव टू एडजस्ट वगैरह. बट द थिंग इज कि ओके, दैट इज फाइन. मैरिज और एनी रिलेशनशिप टेक्स some kind of compromise and struggles and everything. It is a hard thing, it's not a easy thing, but there are uh, things कि इन चीजों में, like there are some things that you have to think कि ये non negotiables है, and these things are so they can differ for everyone. So first of all वही मेरे पास कुछ था ही नहीं कि एक कोई ऐसा मतलब एक कोई चीज कि हाँ ये चीज नॉन निगोशिएबल है, ये नहीं है. I used to accept anything, like any nonsense that have been like put in front of me. तो वो एक चीज थी. Then I used to made feel that I'm good for nothing, like appearance wise, or my intellect, or my understanding, or like there should be something ना that I had, और जो भी है. तो ऐसा था कि I was made feel कि I was not good enough for anything, not like career wise, not academically, anything. So yeah, so that thing shattered my confidence, like gradually. That thing ended my confidence completely. And I was also isolated in my own mind, so I couldn't connect with the real world as well. Yeah, so those were the mainly. So there were many other issues, but yeah, these were the main issues. Do you want to also share about a bit about the minor issue which we discovered after you getting a divorce and we worked on that? या सो माइनर इश्यू तो बेसिकली इश्यूज तो यही थे कि अगर सामने वाला आपको गलत ट्रीट कर रहा है तो यू आर ऑल्सो गिल्टी, यू आर ऑल्सो एट फॉल्ट कि आप उसको वैसे ट्रीट करने दे रहे हैं. Correct. तो ये चीज मुझे बहुत सालों तक समझ नहीं आई. एंड जब तक ये समझ में आई, मतलब थोड़ा टाइम तो बीत ही चुका था, 5-6 साल हो चुके थे. बट देन अगेन आई यूज टू थिंक कि अरे इतना साल मैंने अगर कॉम्प्रोमाइज किया है तो अगर आगे भी करते हैं वगैरह, ऐसा भी सोच थी मेरी. बट देन आई आई आफ्टर अ पॉइंट मैंने एक सोच लिया कि नो, even if I have to adjust in my life, I'll adjust in different things, but not this thing. So ये एक चीज थी. And secondly, minor issue ये भी थे कि I used to feel that that person is not appreciating me, और मुझे validation, basically because of my own maybe issues, I used to seek validation from other thing and I didn't get that. So yeah, ये भी कुछ minor issues थे जो मुझे affect कर रहे थे as a person also, and my relationship also. So moving forward,
What drove you to start working with this? Okay. You only also told me that you have been to like 3, 4 people before you found. So what drove you to start? Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट स्टार्ट विथ कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे थेरेपी लेनी चाहिए, या ये चीज से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ कि आई जस्ट फेल्ट कि एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, नथिंग इन माय लाइफ, लाइक करियर वाइज भी कुछ नहीं हो रहा है, ना फैमिली वाइज कुछ हो रहा है, रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, ना पर्सनली कुछ मैं ग्रो कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। सो फ्रॉम ऑल द थिंग्स आई फेल्ट कि मैं हर जगह में ही फेल हो, कोई भी एक चीज नहीं है जहाँ पे मुझे कुछ लीड मिल रहा है, कुछ मैं आगे बढ़ रही हूँ, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं जिंदगी में कहीं स्टक हो चुकी हूँ, एंड आई डेंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ है और कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड जो मतलब जो हमारे आजू बाजू लोग होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, जो भी है, तो ऐसा था कि मैंने कुछ चीजें उनके ऊपर छोड़ के आई वॉज डिपेंडेंट ऑन देम बेसिकली, लाइक टेकिंग सम डिसीजंस अबाउट माय मेजर डिसीजंस अबाउट माय लाइफ। तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया बिकॉज आई यूज टू थिंक कि दे नो बेटर एंड दे आर माय पेरेंट्स और दे आर माय लाइक एल्डर्स, दे विल विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, और ऐसा कुछ सोच के, ऐसा कुछ थॉट्स मेरे थे। जस्ट मैंने कहा just थोड़ा सा काम चल रहा है बाहर, तो आवाज आ रही है। आवाज तो नहीं आ ओके। तो मैंने ये सोच के उनके ऊपर कुछ चीजें छोड़ दी थी। मतलब ऐसा रहता है ना, यूजुअली वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ बेसिकली। तो वो मैंने कभी ली नहीं थी इसके पहले लाइफ में, एंड मुझे यही लगता था कि जो मतलब बिकॉज कंडीशनिंग भी शायद वैसी हुई होगी, आई डोंट नो, आई डिडंट नो एनीथिंग बेटर देन। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो जो करेंगे वही सही होगा। एंड जब चीजें सही नहीं हुई, गलत होने लगी, तो फिर मुझे लगा कि यही लोग आके कुछ ठीक करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। ओनली यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। और ये मुझे तब जब समझ में आया, तब मैंने सोचा कि नहीं, नाउ आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस, आई हैव टू टेक थेरेपी। लाइक ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिमाग में आ रही थी कि मुझे इसके लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ आंसर चाहिए, और आंसर मुझे कहीं से मिल नहीं रहे। जिन लोगों पे मैं डिपेंड थी या जिन लोगों को मैं देखती थी कि ये कुछ करेंगे या कुछ आंसर्स देंगे, उनमें से किसी ने भी कोई मुझे मतलब किसी के पास आंसर्स नहीं थे उसके, और नहीं होते यूजुअली। तो बेसिकली आई थॉट ऑफ टेकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प, एंड देन मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कुछ लोगों को मतलब मैं फॉलो करती थी, तो वहां से मैंने कुछ लोगों का कांटेक्ट निकाला, से बात करने की कोशिश की। आई ट्राइड कनेक्टिंग विद देम एंड टॉकिंग टू देम, बट आई कुडंट फील दैट कंफर्टनेस कि मैं इनसे हर चीज प्रॉपरली शेयर कर सकती हूँ या जो भी है। देन आई मेट यू, देन आई टॉक, एंड व्हेन आई टॉक टू यू आई फेल्ट सेफ, आई फेल्ट नॉन जजमेंटल स्पेस कि मैं किसी भी चीज के बारे में, बिकॉज आई वॉज इन दैट थिंग ना, मैं उस चीज में तब थी। अभी मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो मुझे इतना कुछ फील नहीं होता है, बट तब मैं थी उस चीज में, तो मुझे वो बहुत ज्यादा फील होता था कि अरे ये सामने वाला मुझे जज ना करे, ऐसी चीजें। मतलब नो बडी जजेस, दैट्स में ये हमारे शायद दिमाग में होता है, वी डोंट नो, लाइक दैट्स डिफरेंट थिंग। बट एक जो फीलिंग रहती है ना कि सामने वाला भी वो वाइब दे सकता है, तो वो वाइब मुझे तुमसे नहीं मिली। एंड देन जो एक फीलिंग ऑफ, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था to feel safe and secure with all my emotions, because I was already very vulnerable and like kind of broken. So yeah, so इस वजह से मैंने सोचा कि okay, when I talked to you I just felt relief, like उसके पहले ना मुझे याद है आई वॉज वेरी क्या बोलते हैं, अंदर से बहुत अस्वस्थ थी मैं। आई वॉज वेरी मतलब रात को सो नहीं पाती थी या जो भी। तो जब मैंने बात की उसके बाद मैं मुझे जैसा थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, रिलीफ फील हुआ, ऐसा लगा मेरे मन पे कोई बोझ था जो कम हुआ है, मतलब नॉट कम्प्लीटली बट एटलीस्ट हाँ, आई फेल्ट कि हाँ कोई एक फ्रेंड है जिनसे मैंने बात की है, एंड नाउ मेरे मन का बोझ हल्का हो। तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड ओके, दिस इज द पर्सन मे बी आई वांट टू शेयर एवरीथिंग विद, एंड मे बी दिस पर्सन कैन हेल्प मी टू लाइक, बिकॉज क्या होता है ना, हो सकता है आपको कहीं और से भी कोई हेल्प मिल जाए जो भी है, बट वो हेल्प होगी भी तो आपको वो लेने की इच्छा होनी चाहिए, आपको उस सामने वाले पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ दैट पर्सन अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि उस समय मोस्टली सबसे ज्यादा किसी और पे ट्रस्ट ट्रस्ट करने से बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है खुद पे ट्रस्ट करना, और वो ट्रस्ट तब मेरे पास था ही नहीं। तो आई वॉज लाइक फीलिंग कि हाँ कोई ऐसा मुझे मिल जाए जिस पे मैं ट्रस्ट कर पाऊँ।
तो हाँ, वो चीज मुझे आपसे मिली, तो मैं आई फेल्ट वेरी रिलीव्ड, सो दैट्स व्हाई थॉट ऑफ गोइंग अहेड विथ यू। So, moving forward throughout our work, what shift did you experience in your beliefs or the way you take action? ओके, सबसे पहले तो ये था ना कि मेरे अंदर जो भी भरा पड़ा था, मे बी गुड बैड जो भी था, उसको एक प्रॉपर वे मिला बाहर आने का। पूरा क्लटर जैसे आता है ना, जैसे कबर्ड साफ करने के लिए बैठ जाते हैं तो पूरा पहले सब कचरा बाहर आएगा, और अच्छी चीजें भी आएगी और सब कुछ आएगा, तो वो सब बाहर आने का एक चीज शुरू हो गया। एंड इट वाज ऑल लाइक ऑल ओवर द प्लेस सबसे पहले तो। बट देन वन, लाइक एक 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 के साथ एक के बाद एक चीजें जब आप लाइक, आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी कि हम एक एक चीज पे काम करते हैं, तो हमने एक एक चीज पे काम करना जब शुरू किया, तो मुझे तब समझ में आया कि एक ही साथ सब करोगे तो यू विल ऑब्वियसली फील ओवरवेल्म्ड। यू हैव टू डू वन बाय वन, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, एंड देन तब के बाद फिर हमने एक एक चीज की, मेरे इमोशंस पे पहले हमने काम किया, थिंकिंग पैटर्न्स कैसे थे वो हमने जाने। फर्स्ट फर्स्ट यू मेड मी रियलाइज कि मैं क्या सोच रही हूँ और मैं किस तरह से सोच रही हूँ, और अगर उसमें कुछ चेंज करना जरूरी है तो यू मेड मी रियलाइज कि ओके, दिस थिंग इज नीड्स टू बी चेंज। अभी ऐसा आता है नेक्स्ट कि चेंज करना बोले तो क्या करना है, दिस इज नॉट लाइक एनीथिंग फिजिकल या कोई ऐसी टैंजिबल चीज तो नहीं है कि हाथ से हमने चेंज कर दी। सो किस तरह से उसको चेंज करना है, उसका वे क्या होता है, उसकी टूल्स और टेक्निक्स क्या होती है, ये सब चीजें, तो ये चीजें पहले मुझे सीखनी पड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑल chaos एज इट शुड, इट आई थिंक वो वैसे ही होता है शायद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑल chaos, एंड देन लेटर ऑन वन बाय वन एक 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 के बाद एक मुझे चीजें दिखती गई, समझती गई, एंड देन मैंने एक के बाद एक चीजें करती गई। तो और जब चीजें करने के बाद मुझे उसका रिजल्ट मिलने लग गया, तो अपने आप ही एक बिलीफ तैयार होते चला गया, और वो अपने आप ही फिर नेक्स्ट टाइम फिर कोई चीज करने के लिए मुझे फिर शुरू से शुरू नहीं करना पड़ा। लाइक एक लेवल आगे हम जब जाते हैं तो फिर हम उसके आगे से शुरू करते हैं, सो फिर उतना टाइम नहीं लगा आगे जब जब हमने शुरू किया उसके बाद। सो या, इनिशियली तो बहुत chaotic था, बट लेटर ऑन इट ऑल गॉट ओके, गॉट फाइन। So if I ask you what were the major mindsets कि यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म किया, क्या breakthroughs थे, क्या realize throughout this? I guess we have worked for more than 1.5 years or 2 years. Yes, I think yes, So yes, I think almost for 2 years, almost. हाँ, so in these 2 years, if you can recall certain कि जहाँ पर you felt that there were major breakthroughs, what were the mindset shifts you want to discuss? ओके, तो सबसे पहले इनसिक्योरिटीज तो बहुत थी, तो इनसिक्योरिटीज पे हमने बहुत अच्छे से काम किया है। एंड माइंड शिफ्ट्स तो देयर वाज लाइक सो मेनी, आई वाज लाइक, अभी मैं देखती हूँ तो आई डोंट नो हाउ इफ आई कैन से दैट, बट एक जो न्यू नाइव इंसान रहता है जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जा रहा है, एंड दैट पर्सन हैज लाइक वेरी अनकरप्टेड काइंड ऑफ थॉट्स कि ऐसा है वैसा है, दुनिया में एक सब अच्छा है, एंड looking at the world with very what do you say, pink colored glasses and everything, but actual reality में वैसा नहीं होता है, because कभी कभी हमको अलग अलग experiences आते हैं अलग अलग लोगों की वजह से, या जो भी चीज लाइफ की वजह से, लाइफ थ्रोज यू थ्रू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो मुझे बहुत सारी रियलिटी जो हिट रहता है ना, वो चीजें पता चली इन सब सेशंस के दरमियान, और मुझे ऐसा समझ में आया कि मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो गलत है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट मे बी देयर नीड्स टू बी चेंज विद टाइम। एंड वो मतलब थॉट हमारा जो एक, हम एक बहुत अडामेंट हो जाते हैं कि नहीं मैं ऐसी ही हूँ, या नहीं ये शायद किसी और को उसको जम सकता है बट मुझे नहीं आएगा ये करना, मेरा नेचर ऐसा नहीं है, जो भी है ये हम खुद डिसाइड कर लेते हैं ना कि आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। सो ये एक चीज जो थी मेरे अंदर पहले, तो वो बाद में धीरे धीरे चेंज होने लग गई, और मुझे ये समझ में आया कि इट्स ओके टू बी फ्लेक्सिबल, इट्स ओके टू कीप योर नीड्स। मतलब सबसे पहले हम, अगर हम खुद सेल्फ लव करेंगे तो हम अच्छे से दुनिया को भी समझ सकेंगे, दुनिया को भी प्यार दे सकेंगे। सो यार, सो ऑल दीज माइंड शिफ्ट्स वर देयर, लाइक मैं आई कैन लाइक बहुत अच्छे से मैं फर्क समझ सकती हूँ कि मैं पहले किस तरह से सोचती थी। लाइक आई यूज टू डू मेनी थिंग्स विच आई डिडंट वांटेड टू डू, बिकॉज आई कुडंट से नो, इवन इफ लाइक दे वर हार्मिंग मी, बॉदरिंग मी, जो भी है, और मुझे नुकसान कर रही थी वो चीजें, स्टिल आई यूज टू गो अहेड एंड डू। एंड द वर्स्ट थिंग वाज आई यूज टू रियलाइज कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, बट स्टिल आई यूज टू डू इट बिकॉज आई कुडंट से नो, और आई वॉज नॉट ब्रेव इनफ टू कन्फ्रंट दैट थिंग, और जो भी है। तो देन ये माइंड शिफ्ट तो वहीं से शुरू हो गए कि नो, यू हैव टू बी ब्रेव फॉर योर सेल्फ,
You have to take a stand for yourself. You cannot be this adamant कि नहीं मेरे से होगा ही नहीं. अगर नहीं होगा तो there was no use for the I therapy feel only. the major breakthrough for me as a therapist for you was when you told me that Manvi, I am all in for it. And you were so okay with doing everything, whatever I used to. Even though it was, I used to tell you, whatever I used to tell you, were like, okay, I'll do it. No matter how hard it used, no matter how uncomfortable it used to be for you, no matter how many times you used to cry for the same thing. But I feel your willingness to work on yourself and to reach on the other side of the life was something which made all the difference for you, because a lot of people don't have that, I would say, willingness to work on them. It's not about कि तुम बस session में आ रहे हो and you are doing the work. I feel the major work happens beyond the sessions, and you did that work which made you for the person you are today, and you did all the work very consistently, बहुत dedication से, बहुत अच्छे से आपने काम किया, and that was the reason कि आप इस साइड पर आ पाए in your healing. Yeah, but I think कि trusting you completely helped me in doing that, because अगर मुझे पता है कि okay, if she is telling me, then I know I have to do it, no matter how hard it is, no matter how uncomfortable it gets, I have to do it because this is the only way out. तो यही मुझे दिमाग में पक्का हो गया था. So Yeah. yeah, it So works that, like I both mean, sides. I was the guiding source, definitely. But because of me, I feel that you were also able to trust the God and universe more, and you were able to Yeah. surrender. Yes, Because, I was able to surrender. Yeah, yeah, which is and a that's, very big. pardon? Yeah, मतलब surrendering is a big part of it, I think. Yeah, and that's when you started seeing the major changes in your life, what's happening, and how things are working out in your life. So, moving forward, what are the tangible changes have you seen in your confidence, in your relationships, in your career or finance? All the So. external growth and the internal, both the. The main changes that happened were inside of me. And when those changes occurred, my external, like internally जब changes हुए, मेरे surroundings completely change होने शुरू हो गए. So I'll just start with like myself. सबसे पहले तो मेरे अंदर जो confidence आया है अपने आप को लेके, now I can face anything, and I can like start life over again, no problem. Like we are like always thinking no matter what happens, हम आगे जा सकते, no problem. Now I can do anything, now I can take on anything. And अगर stack again and again, if like, कुछ भी गलत भी होता है ना, तो we are like okay, no problem, we'll do it again, we'll again build it up again, no problem, we'll do it again. यही एक चीज आती रहती है, and वो confidence आता है कि okay, no problem, you can do it even if someone else is trying to put me down. That person can't, like that person understands कि okay, आई एम नॉट द मतलब मैं वो लड़की नहीं हूँ जो जिसको कुछ भी बोलेंगे हम तो वो शांत होके सुन लेगी, और शील फील बैड और एनीथिंग. नो वन कैन मेक मी फील बैड और अबाउट एनीथिंग. सो जो जो अदर पीपल का पावर होता है अपने आप पे, वो अभी कम हो चुका है, कम नहीं, आई थिंक जीरो ही हो चुका है. एंड कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक बढ़ गया है. सो ये बहुत एक मेन टेंजिबल चीज है मेरे अंदर जो मैंने देखी है. सेकेंड थिंग कि आई एम एबल टू थिंक वेरी क्लियरली ना. जो पहले मेरे अंदर बहुत ज्यादा इनडिसाइसिवनेस था, या जो केओस था, या ये था ना कि अच्छा, डाउटफुलनेस था बेसिकली हर चीज को लेके, जो डाउट्स रहते थे. तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं एकदम मतलब डाउट नहीं रहता है कुछ, नो आई एम जस्ट रेडी विथ ऑल द आंसर्स, ऐसा नहीं रहता है. बट नाउ आई एटलीस्ट नो द प्रोसेस कि ओके, मुझे इस सवाल का आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आई विल डू समथिंग एंड टेक सम स्टेप्स टू कुछ इंफॉर्मेशन. अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं सोचती हूँ कि मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही, अच्छा मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ, एंड उसके बाद मैं फिर उस चीज को लेके क्लियरली सोच पाऊँ. तो ये एक चीज भी बहुत अच्छे से मेरे अंदर, जो पहले बहुत इनडिसाइसिवनेस था वो कम होके अभी मैं काफी अच्छे से डिसीजंस ले सकती हूँ. एंड पहले ये भी डर लगता था कि अच्छा मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो और वो गलत हो गया तो कैसा हो गया. तो अभी ऐसा है कि ओके, अच्छा हुआ तो वो वेल एंड गुड, अच्छा है, और अगर गलत भी होता है तो ओके, नो प्रॉब्लम. इट्स नॉट लाइक एंड ऑफ द लाइफ, आई कैन अगेन कम बैक एंड अगेन डू द सेम थिंग. इट्स ओके. सो ये जो इट्स ओके दैट not feeling bad about myself and being kind to myself. then again self love एक जो चीज होती है जो मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं, उल्टा होता था, सेल्फ सैबोटेज होता था. बट हाँ, अभी तो वो सेल्फ लव बहुत ज्यादा आ चुका है. सो या वो भी एक चीज है. तो ये सब चीजें मेरे अंदर टेंजिबली, ये मैंने अपने अंदर देखी. देन इसके बाद
ये चीज करियर में इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई कि कोई भी अगर टास्क मेरे सामने आता था मेरे ऑफिस में, तो इनिशियली आई यूज टू लाइक, सबसे एकदम इनिशियल स्टेज में आई यूज टू गेट अ लिटिल स्कैर्ड कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, कि मेरे से हो पाएगा या नहीं। बट धीरे धीरे फिर अभी जैसे जैसे मैंने वो चीजें करना शुरू किया है, नाउ आई कैन, I'm like one of the kind of valuable asset to my company, and they trust me with many new projects. तो और नई चीजें करने में मुझे से डर तो लगता ही है वैसे, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वजह से बिना किए बैठ जाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं सीखती हूँ कि मुझे डर क्यों लग रहा है, अच्छा मुझे ये इशू है, तो इस इशू को सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो ये जब बेसिकली प्रॉब्लम्स अभी भी आती है जैसे पहले आती थी, बट अभी मेरा माइंड अपने आप ही सॉल्यूशंस ढूंढने लग गया विदाउट पुटिंग माई सेल्फ इनटू डाउट, एंड आई एम बीइंग काइंड ऑफ माई सेल्फ कि अगर मेरे से कोई गलती भी होती है तो आई एम लाइक कि ठीक है, इट्स ओके, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो थोड़ी बहुत गलती होगी, नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो ये जो एक काइंडनेस मैं अपने आप को देती हूँ, तो ये चीजें हैं। और अगर मैं बहुत ज्यादा बर्न आउट फील कर रही हूँ तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, and I use that time to rejuvenate or self love basically. So career में ये चीजें हो रही है। I'm now moving forward as then in my personal life I met this सबसे पहले मैंने जो बेसिकली ये सब काम किया है खुद के ऊपर, इससे क्या हो गया कि मेरा माइंड पूरा शिफ्ट हो गया है, माइंड सेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुड vibrate in higher frequencies, I could make proper decisions, and I always बेसिकली क्या हुआ ना, इन चीजों की वजह से मैं ये समझ पाई कि ये चीज करनी क्यों होती है, बेसिकली हम शादी क्यों करते हैं, हम व्हाई वी गेट इनटू द रिलेशनशिप। इसका ऐसा ये रीजन नहीं कि दुनिया कर रही है तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो फाइंडिंग अ प्रॉपर लाइफ पार्टनर, प्रॉपर इन द सेंस ऐसा नहीं कि ही इज लाइक सर्वगुण संपन्न 100 आउट ऑफ 100%, तो बट जो चीजें मुझे एक इंसान में चाहिए, सामने वाले मेरे पार्टनर में चाहिए, सो आई स्टार्टेड बिकमिंग देम फर्स्ट एंड It, देन it all started from you accepting yourself at first and yeah, you right, nurturing your inner child. Because once you started nurturing your inner child, then yes, you were able to understand what your needs are in you, yes, and then yes, you were able to see कि ये सामने वाले इंसान ये मेरी नीड्स को फुलफिल कर सकता है from the हाँ, external vision. And right, you were able to vibrate at the same frequency that these are certain things which I want in my partner, and that's how you go you went forward with. yeah, so exactly this is the same thing, and now I'm very happy because the things are like, क्या है ना कि जो जो चीजें नहीं देखनी चाहिए, एक्सटर्नल चीजें हैं, उन पे ज्यादा फोकस कभी जाता ही नहीं है डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में हमें वही चीजें देखनी होती है, वही चीजें यूज में आती है, जो बेसिकली जो हम क्या बोलते हैं उसको, इंसान में जो गुण होते हैं ना, बेसिकली वही चीजें हमें हेल्प करते हैं लाइफ में ग्रो होने का। सो बेसिकली हमें दोनों का ही फोकस अभी ये होता है ना, सो इंटरनली हमारा रिलेशन जितना स्ट्रांग होगा, एक्सटर्नल इश्यूज को हम उतने ही अच्छे से टैकल कर पाते। तो एंड देन वी बोथ आर कंटिन्यूअसली फोकसिंग और ऑन आवर गोल्स, वी आर सेटिंग आवर गोल्स फॉर लाइक 6 मंथ्स में हमको क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, एंड आगे कैसे बढ़ना है, या इस साल का हमारा ओवरऑल क्या होने वाला है, एक ईयर कैसा दिखना चाहिए, जो भी है। तो एक प्लानिंग है, तो दोनों चीजें ही, एक मेरी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी प्रॉपर एक आउटकम पे फोकस होता है, और ना ही बस। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी इंटरनल जो स्ट्रगल्स है जो भी है, वो चीजों में ध्यान ही नहीं जाता। सो दिस थिंग इज वेरी, जब हम सेल्फ वर्क करते हैं तो ये चीजों पे बहुत हेल्प होती है, ये चीजों में बहुत हेल्प होती है, क्योंकि हम छोटी छोटी माइनर चीजों पे ध्यान, मतलब इश्यूज पे ध्यान नहीं देते, प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, और हमको अल्टीमेट गोल हमारा है आगे बढ़ना, तो उस पे कैसे जाना है, यही हम दोनों का एक थॉट प्रोसेस चलते रहता है। एंड देयर आर सो मेनी टाइम्स वेयर, सो बेसिकली मैं भी डिवोर्स से आई थी, एंड ही आल्सो केम फ्रॉम अ वेरी पेनफुल डिवोर्स एंड एवरीथिंग, बट उनका भी कुछ ट्रॉमा था ही, मेरे भी कुछ ट्रॉमा था ही, बट वी बिकॉज हमने खुद दोनों ने खुद पे काम किया था, इन चीजों की वजह से हम ये समझ पाए कि ओके, दीज थिंग्स वी हैव टू अवॉइड, दिस थिंग वी हैव टू फोकस ऑन, ये चीजें हैं जो लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हम बहुत अच्छे से सॉर्ट कर सकें, एंड हमको जो चाहिए उन चीजों पे हम फोकस कर सकें। तो ये इस तरह से, मतलब थेरेपी हेल्प मी इन दिस। कोर्स बिकॉज हम जब सेम वैल्यूज के साथ काम करते हैं और हमारी सेम प्रायोरिटीज होती है पार्टनर के साथ, तो इट हेल्प्स ग्रो टू अ होल डिफरेंट डायमेंशन। एंड राइट, वहां पर फिर हम एक आउटकम, एक गोल्स उस अकॉर्डिंग बना पाते हैं जब हम दोनों को फिर साथ में लेकर। यस। सो नाउ व्हेन यू लुक एट वेयर यू आर नाउ, हाउ डू यू फील कंपेयर टू व्हेन यू फर्स्ट started working?
I think that Shivani will not recognize this Shivani, the zero. Like she will think कि ये कोई और ही इंसान है. इतना ड्रास्टिक चेंज है मेरे अंदर. एक जो लीडरशिप क्वालिटी जो पहले नहीं थी, अभी वो है. कॉन्फिडेंस जो है मेरे अंदर, जो भी चीजें मैं अभी लिटरली मतलब जो भी मेरे विजन बोर्ड पे जो भी चीजें होती है ना, वो रियल लाइफ में होती है. एवरीथिंग एवरीथिंग Yeah. touchwood, वो सब चीजें. तो ये सब आई थिंक दैट पर्सन विल नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज दैट पर्सन वाज लाइक वेरी scarred person, unhealed, scarred, traumatized, everything. And now I'm healing myself. It is in like work in progress, but हाँ healing हो रही है. And sometimes I also feel कि I'm really happy now कि God has given me this placing now, because अगर पहले दिया होता तो शायद मेरा ट्रॉमा या जो भी चीजें उन वजह से I would have messed this whole experience, because motherhood is a like it is very beautiful but it is very difficult also. तो बहुत सारे challenges आते रहते हैं. हर चीज like external तो आती है, internally भी बहुत changes होते रहते हैं. तो accepting myself was like my body was changing, और वो सब चीजें accept करना. तो पहले तो मुझे मुझे I can totally tell you कि I would have messed it up, क्योंकि मैं एक्सटर्नल चीजों से अपना वैलिडेशन सीख करती थी ना. और हर चीज लाइक कोई अगर कोई माइनर कमेंट भी कर देता तो मुझे वो अफेक्ट करती थी. बट अभी नाउ आई नो कि व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली. अगर कोई मुझे अभी कुछ ऐसे भी बोल भी देता है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि मैं ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रही हूँ अभी, सो आई डोंट केयर व्हाट यू से. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि तुम कैसे बैठी हो क्या, बिकॉज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी कर रही हूँ. बेसिकली आई एम क्रिएटिंग होल ह्यूमन, सो यू विल नेवर अंडरस्टैंड द ग्रेविटास ऑफ दैट थिंग, सो इट्स ओके. आपके जो थॉट्स है वो आपके पास रखिए, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता. तो ये एक चीज जो अंदर से आई है, तो ये थेरेपी की वजह से ही आई है आई थिंक. या डेफिनेटली, बिकॉज तुम्हारा थॉट प्रोसेस जैसे चेंज होता है, यू चेंज, सो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है फॉर हु यू आर. सो यस. देन यू सी द वर्ल्ड इन अ होल डिफरेंट वे, द वे यू यूज. या और मुझे बहुत सारे लोग मतलब इन अ गुड वे ऑल्सो एंड इन अ बैड वे, लाइक जैसे टोंट कर रहे ऐसे भी वे में कुछ लोग बोलते हैं कि यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू हैव चेंज्ड अ लॉट. तो आई सेड कि या दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ना. अगर मेरे साथ इतने कुछ चीजें हुई है और उसमें से अगर मैं कुछ सीख के आगे नहीं बढ़ी, चेंज नहीं हुई, देन व्हाट्स द पॉइंट ना. देन इट विल बी माय स्टुपिडिटी टू स्टे द सेम ना. तो ये एक चीज. और एक फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था. लाइक आई थिंक इट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कि उसने मुझे ये कहा था आफ्टर ऑल दिस थिंग्स एंड शी सॉ ऑल द चेंजेस एंड एवरीथिंग, एंड शी सेड कि अभी ना मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती. अभी मुझे पता है कि यू विल थ्राइव इन दिस वर्ल्ड. अभी वाओ. मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू जस्ट किल इट. अभी चिंता ही नहीं होती बिल्कुल. तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड नाउ आई फील द सेम कि मुझे मेरे पेरेंट्स को भी अभी मेरी चिंता नहीं होती. उनको बाकी लाइक दे विल बी लाइक मुझे अभी सामने वाले की चिंता होगी जिससे तो डील करेगी, बट नाउ वी आर लाइक वी डोंट हैव एनी वरीज अबाउट यू. You're sorted, and we are very happy that you achieved this. I'm so happy that you have reached to that level. So coming back, so yeah, what all you have manifested so far? Like, because I remember you have manifested so many things, so many. Yeah, yeah. I want to know all of that so that you can inspire so many people out. ओके, सबसे पहले जो मुझे इम्पॉसिबल चीज लगती थी, सी कुछ चीजें होती है जो हम हमारे हाथ में होती है, हम उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे तो हमको मिल जाए, ये एक सिंपल फंडा होता है. बट कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में ही नहीं है, इट इज लाइक कंट्रोल में नहीं है, जैसे कितना समय लगेगा उस चीज को या जो भी है. तो ये चीज सबसे पहले तो मैंने जो डिवोर्स मैनिफेस्ट किया था मेरा, एकदम हैसल फ्री, इजी, क्विक, जैसा मैंने सोचा था. Elaborate a bit on this. कैसे हुआ था, क्या हुआ था? Because I remember it. या सो Yours. मुझे डेट भी याद है. तो इट वाज 17th February 2022 आई गेस, एंड आई वाज वेरी 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 डाउन एंड वेरी डिप्रेस्ड एंड एवरीथिंग. और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आया था उस दिन कि क्या होने वाला है, लाइक आई वाज अबाउट टू क्राई एंड एवरीथिंग. एंड उस दिन मैंने मानवी को मतलब आपको मैसेज किया कि दिस इज ये सब हो रहा है. एंड मैं शायद सेशन एक दो दिन बाद होने वाला था या कुछ, बट हमने उसी दिन सेशन रखा because of my condition. And in that session you just asked me कि what is like what am I going through and everything. तो मैंने बोल दिया सब कुछ कि क्या हो रहा है मेरे साथ. बहुत ही ज्यादा ऐसे weird, depressed and अलग ही लग रहा था, kind of suicidal also, कि पता नहीं कुछ होगा ही नहीं या लाइफ में, क्योंकि डिवोर्स तो सामने वाले मतलब ऐसी चीज है कि वो अपना अपना टाइम लेगी, प्रोसेस होगा कैसे होगा आगे जाके, तो वो सब चीजें. तो बट देन यू आस्क्ड मी टू लाइक जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, लाइक
first of all, you calmed me down. Then you asked me to surrender, and you just asked me to write everything कि मैं क्या चाहती हूँ, बेसिकली मुझे कैसे चाहिए अपना डिवोर्स, किस तरह से वो प्रोसेस होना चाहिए, इज व्हाट आई एम मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो लिखना है एक पेपर पे। और वो मैंने सब कुछ लिखा। उसमें आई थिंक 1 घंटे के आसपास कुछ, या उससे कुछ थोड़ा कम टाइम होगा, आई डोंट नो, बट उतना समय गया था। और मैंने पूरा वो डिटेल सब कुछ लिखा था कि वो सराउंडिंग कैसा होगा, कोर्ट का सराउंडिंग कैसा होगा, फिर मेरे साथ कौन कौन होगा, मैंने क्या आउटफिट पहना होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग। एंड आई रोट इट डाउन एंड यू मेड मी विजुलाइज एवरीथिंग कि जो भी मैंने अभी लिखा है वो सब विजुलाइज करो। एंड मैंने उसमें ये भी लिखा था कि बहुत क्विक, इजी, हैसल फ्री, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस तरह से सब कुछ जल्दी से निपट जाना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने लिखा था उसमें। एंड आई विजुलाइज एवरीथिंग। वहां पर आप मुझे बोल रहे थे कि मानवी वो तो म्यूचुअली मान ही नहीं रहा है। हाँ, राइट राइट, दैट पर्सन वो म्यूचुअली नहीं, एक्चुअली वो डिवोर्स के लिए ही नहीं मान रहा था, नॉट लाइक म्यूचुअली ऑल्सो किसी तरह भी। तो आई वॉज वेरी वरीड कि पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, बट उसमें मैंने लिखा था कि उसने भी इजिली मान लिया है। एंड बहुत अच्छे से सब कुछ, विदाउट एनी स्ट्रेस सब कुछ हो गया है। एंड उसके बाद आई विजुलाइज दैट कि वो कैसे कैसे होगा, जो भी मैंने पेपर पे लिखा था सब कुछ मैंने विजुलाइज किया। एंड आई लेफ्ट इट, बिकॉज क्या है ना कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डाउट में थी और डिप्रेस्ड थी। तो यू सेड कि ओके नाउ जस्ट फॉरगेट, कि जो भी लिखा है उसको सब भूल जाओ, और जो भी है। और मेरे लिए वो आसान भी था, क्योंकि मैं मतलब इतना उस पे सोच ही नहीं पा रही थी कि ऐसा होगा वगैरह। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मैंने अपने अंदर से वो सिस्टम से निकाल दिया, नाउ लेट इट गो। एंड फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी हुई तो मेरा ध्यान नहीं गया उन चीजों, मतलब घर में भी कुछ इश्यूज वगैरह हो गए थे, तो उस वजह से फिर देन कट टू अप्रैल। मुझे ऐसा लगा था जल्दी, इन द सेंस 6 मंथ लगेंगे डिवोर्स होने में, बट वो जल्दी, इतनी जल्दी हो गया कि वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही हो गया। मतलब अप्रैल में मैंने कुछ, अप्रैल के स्टार्टिंग डेज या मार्च एंड में, अप्रैल बिगिनिंग में कुछ डेट्स आई थी, और अप्रैल के एंड तक मेरा कंप्लीट डिवोर्स प्रोसेस हो गया था। या Everything was done and I was like, I had papers in my hand on like मई के कुछ, 1 मई के आसपास, क्योंकि बाद में फिर कोर्ट को छुट्टी लग जाती है, सब कुछ था। तो उसके बाद मेरे पास पेपर्स आ चुके थे। तो इट वाज सो क्विक कि मुझे वो हैंडल नहीं हो पा रहा था। आई वाज लाइक, क्विक बोले तो आई थॉट एटलीस्ट 6 मंथ्स तो लेंगे, 4 मंथ्स तो लेंगे, वन विद इन मंथ। एंड ऑल्सो ऐसा हुआ ना कि यूनिवर्स पे बिलीव मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया उस टाइम, बिकॉज वन रैंडम पर्सन आउट ऑफ नो वेयर केम, लाइक ऐसे ही मेरे अंकल के पहचान की एक लेडी थी, नेबर थे शायद कोई, तो उनसे अंकल ने जस्ट इन जनरल कुछ सलाह लेने के लिए बात की। एंड शी सेड कि why are you going through all this process, I'll help you and you just go through this process। so उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे केस के लिए, और वो सब चीजें 1 मंथ के अंदर अंदर सॉर्ट हो गई। एंड ऐसा हुआ, बाद में जब एक एक मंथ के बाद हम जब गए उनके पास टू से थैंक यू, शी वॉज नॉट देयर, उनकी ट्रांसफर हो चुकी थी कहीं और। तो मतलब ऐसा था ना कि वाकई वो, या तो वो आई, शायद मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ मेरे केस के लिए आई, वहां पे उन्होंने मेरा काम किया, और वो शी वेंट अवे फॉर हर नेक्स्ट जर्नी, दैट्स इट। तो इसी तरह से यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। तो तब मुझे बिलीव होने लग गया कि ओके दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स। तो ये चीज बहुत अच्छे से मुझे बहुत, इट ऑलवेज गिव्स मी गूज बम्प्स। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने मैनिफेस्ट की है। देन उसके बाद मेरा जॉब, आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मुझे पता नहीं मुझे कौन जॉब देगा या जो भी है, बट वो भी मुझे बहुत, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी जो वहां पे जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही थी। एंड शी कॉल्ड मी कि शी सेड कि अच्छा मैं अभी कर रही हूँ, तो दिस इज लाइक कुछ ऐसा मेजर कुछ नहीं है, यू विल ऑल्सो एबल टू डू इट, इट्स ओके, इट्स नॉट वेरी हार्ड और एनीथिंग। तो वो मैंने सोचा चलो ऐसे भी कुछ नहीं कर रहे तो करके देखते हैं बेसिकली। तो बेसिकली यही है कि अपॉर्चुनिटी जब आती है तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इंस्टिंक्ट एंड गो फॉर इट। तो मैं गई वहां पे, एंड उसके बाद उसने 2-3 महीने में फ्रेंड ने छोड़ दिया, बट मैं वहीं रही। एंड देन आई लाइक बिकेम परमानेंट देयर। तो बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब था जो 3 महीने बाद एनीवे खत्म होने वाला था, 3-4 महीने बाद, बट वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए 6 महीने तक चला। एंड देन उसके बाद मुझे वहीं पे परमानेंट भी करवा दिया गया। सो दिस इज आवर लाइक, और वो मेरा काइंड ऑफ ड्रीम जॉब। बेसिकली आई यूज टू लव राइटिंग, आई यूज टू लव एनालिसिस एंड रिसर्च वगैरह, एंड वो चीज उसी में थी, मतलब वो जॉब उसी में था। तो जो मुझे एक डर था ना कि मेरे बैकग्राउंड से तो मेरा अभी, बिकॉज आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और थोड़ा गैप आ गया था क्योंकि बीच में मैंने 2-3 साल तक जॉब नहीं किया था आफ्टर कोविड एंड एवरीथिंग। सो जो मेरा बैकग्राउंड था, मुझे वही डर लगता था कि पता नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कौन जॉब देगा वगैरह, ऐसा जो भी चीजें। बट हाँ, उन सब चीजों का मतलब मेरी स्किल्स का यूज हुआ।
बट मेरी डिग्री का यूज नहीं हुआ। तो बेसिकली दिस इज हाउ आई गॉट माई जॉब। सो मैंने जॉब अच्छे से मैनिफेस्ट किया। देन उसके बाद लिविंग लिविंग ऑन माई ओन, लाइक आई ऑलवेज यूज टू फियर, और मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थी। लाइक सबसे पहले तो मेरा पूरा एजुकेशन मेरे होम टाउन में मेरे फैमिली के साथ ही हुआ है। देन आई गॉट मैरिड लाइक बिफोर इवन लाइक कंप्लीटिंग माई मास्टर्स डिग्री, तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी हो गया। उधर भी मैं बहुत ज्यादा ऐसे कवर्ड सिक्योर्ड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ही थी, तो मैं कभी ज्यादा वर्ल्ड से इंटरेक्ट करना या अपने आप से चीजें करना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन थिंग, ऐसी चीजें मैंने ज्यादा नहीं की थी लाइफ में। एक्सपोजर ही ज्यादा नहीं मिला था। बट एंड लिविंग इन पुणे ऑन माई ओन वाज लाइक काइंड ऑफ अ ड्रीम, बट वो भी हो गया है। मेरे घर वालों को इतना ज्यादा शौक लगा कि ये लड़की, पहले उनको लगा कि ये सच में कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो वो खुद आए थे देखने के लिए, क्योंकि मैंने अपना घर खुद ही ढूंढा था, सब चीजें पूरी की थी। तो जब मैं सामान ट्रांसफर कर, उनको लग रहा था कि ये ऐसे केवल बोल रही है, जाएगी नहीं। बट जब मैं एक्चुअली गई तो देन दे वर लाइक कि ओके फाइन, एंड देन धीरे धीरे उनको भी ट्रस्ट आया मेरे ऊपर। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज माई लाइफ पार्टनर। ये मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी थी कि आई यूज्ड टू थिंक कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, एंड मैं मुझे कोई इंसान अच्छा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बहुत बहुत बचपन से ये मेरी थॉट प्रोसेस में फीड हो चुका था ये चीज। तो मुझे यही लगता था हमेशा कि पहले ही नहीं इतना इशू, पहले ही मैरिज में इतने इशू हुए हैं, अभी तो सेकंड होगा, अभी तो पता नहीं कैसे कौन मिलेगा। आई डोंट नो इवन इफ आई विल गेट इट और नॉट। तो इस पे भी मैंने मानवी से मतलब बहुत काम किया हमने इस चीज पे, सिक्योरिटी। और बेसिकली ना मुझे सेल्फ लव का इम्पोर्टेंस और मतलब भी बेसिकली वहीं से पता चला। उसके पहले मुझे लगता था कि नहीं, अगर वो चीज है, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट अगर कोई निगेटिव भी चीज है तो उसको, निगेटिव है तो ज्यादा प्यार करेंगे, तो Hmm. ऐसा नहीं। जैसे मानवी वाज लाइक नो, ऐसा नहीं है, उसको भी इक्वली प्रेम, उस इक्वली ही करना है, ट्रीट करना है। बिकॉज अगर उसको हम एक्स्ट्रा अच्छे से करेंगे तो दैट मीन्स वी आर, उसको हम और ज्यादा क्या बोलते हैं, अलग स्टैंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको वो नहीं करना है। हमको उसको वैसे ही रखना है जैसे वो नॉर्मल सब चीजें हैं। तो वो सब चीजें, फिर वो सीखना, वो देन स्टार्टिंग टू लव माई सेल्फ, एंड देन आफ्टर दैट लाइक बिलीव मी, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मेरे लाइफ में नहीं मिले जितने उस एक साल में मैंने, और हर इंसान से, हर रैंडम इंसान से, मे इट बी अ गर्ल और बॉय जो भी है, दैट पर्सन यूज्ड टू कम टू मी एंड से कि यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू लुक सो अट्रैक्टिव। लाइक ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बट दे यूज्ड टू ऑलवेज से कि देयर इज समथिंग इन यू दैट अट्रैक्ट्स पीपल। तो वो एक चीज मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की, एंड अभी भी कर रही हूँ एक्चुअली। तब मैं ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि तब मैं शायद ज्यादा मतलब फर्स्ट जब मेरी शादी हुई 2015 में, तब मैं ज्यादा अच्छी लगती थी व्हेन आई लुक बैक। बट तब मुझे लगता था कि नहीं, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। और अब मैं अगर देखती हूँ तो एज कम्पेयर टू दैट, आई ऑब्वियसली अभी थोड़ा हो चुका है चेंजेस बॉडी में वगैरह, बट अभी भी माई हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट्स मी डेली डेली, नो मैटर वॉट, लाइक मैं कितना भी मैस लग रही हूँ, he will compliment me daily कि you look so beautiful, you look so pretty and everything. So I realized कि ये जो चीजें हैं वो अंदर से आती है। तो बेसिकली ये जो लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, ये भी मैंने बहुत, देन अगेन this baby, Yeah. my life partner and this baby, I am manifested. I don't know how, but it happened because ये चीज भी मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं होगी नहीं होगी Yeah. लाइफ में, बिकॉज मुझे यही फील करवाया गया था कि यू विल नॉट बी अ गुड मदर, यू वोंट बी एबल टू हैव अ किड और एनी, बिकॉज वो सामने वाले के इश्यूज थे, बट दैट पर्सन यूज टू इम्प्लीमेंट देम ऑन मी, लाइक तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है जो भी। बट थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस motherhood. Yeah. So this is also like one big thing that I've manifested. Thank you for sharing. And I feel so, so, so proud of you because I know the work you have put into yours to reach here. So whenever I think about you, it's like I get goosebumps because I know you have done the actual work, not for the sake of saying that you have done the work, but you have actually done the real work, which we call real life. So Yeah. let's say if someone is feeling stuck like you were when you came to and is very hesitant, doubtful to invest in themselves, what would you tell them? या सो एक्चुअली मैं यही बताने वाली थी अभी कि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स है, मेरी सिस्टर्स है, बहन, जो आई थिंक माय सिस्टर हैज आल्सो वर्कड विद यू फॉर सम टाइम। Yeah. तो तो मैं बेसिकली ना, क्या होता है ना कि जब कोई आके आपको ये सब चीजें बता रहा है तो यू डोंट नो व्हाट टू से और हाउ टू कंसोल दैट पर्सन, जो भी है। बट नाउ आई नो
कि मुझे उससे क्या बात करनी चाहिए, मुझे उससे किस तरह से बताना चाहिए कि ओके हाउ यू हैव टू, एंड मैं उसको ऐसे रैंडम चीजें नहीं बोलती हूँ या वेग चीजें नहीं बोलती हूँ कि नो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव वगैरह, बट आई अंडरस्टैंड कि व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज आई वेंट थ्रू द सेम थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको यही बताती हूँ कि यू शुड गो टेक अ थेरेपी, बट इफ दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू टेक अ थेरेपी, आई ऑलवेज ट्राई टू पुश देम, always try to make them understand that therapy will only help you, and I think now they are getting it when they look at me because उनको पता है कि पहले मैं कैसी थी, पहले मेरी लाइफ कैसी थी और अब वो कैसी होगी, so now they are understanding everything what I used to tell them back then. So maybe they will I think I 100% think कि they will get to the therapy, but I think कि वो उनकी भी जर्नी है, तो उनको वो मतलब किस पेज से जाना है आगे या किस वे से जाना है वो खुद वो डिसाइड वो करेंगे, बट आई ऑलवेज पुश देम टू टेक थेरेपी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई ट्राई टू मेक देम फील कि दे हैव बीन हर्ड, दे हैव बीन सीन, कि ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी फीलिंग्स को आइदर डिसमिस ही कर दिया या फिर कुछ ऐसे बोल दिया कि नहीं नहीं तुमको तो पॉजिटिव रहना चाहिए या जो भी है। आई ऑलवेज टेल देम कि ओके इट्स ओके, आपको जो फील हो रहा है वो सही है, वो कुछ गलत नहीं है, और आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, इट्स ओके वी आर विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल गेट बेटर वगैरह। हम मतलब बेसिकली आई ट्राई टू गिव देम अश्योरेंस जितना भी पॉसिबल है, एंड आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि देन दे आस्क मी कि हाउ कम यू आर सो लाइक, तुम ऐसे कैसे इतना अच्छे से बता सकते हो जो भी है। तो आई ऑलवेज टेल देम कि ये सब चीजें मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बोली है, तो मैं ये तो आपको बता सकती हूँ, तो बेटर है कि आप भी। तो वो मुझे बताते हैं कि नहीं तुम ही हमको बताओ या हम थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। तो आई एम लाइक कि नो आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई कांट हेल्प यू विद बिकॉज आई हैव माई ओन लाइफ, तो मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ इफ यू नीड हेल्प, बट आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू लाइक अ थेरेपिस्ट वुड। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके पास ही जाएं और वो ही आपको अच्छे से, बिकॉज उनके पास प्रॉपर नॉलेज होता है कि किस तरह से किस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी मैं उनको अच्छे से समझ सकती हूँ बट मैं उनको समझा नहीं सकती, True. तो वो चीज तो प्रोफेशनल ही कर सकते हैं, तो आई थिंक ऐसे टाइम पे तो मैं उनको वही सजेस्ट करती हूँ। So if someone is very is on the edge, is on the fence about हम्म joining my programs or any course or start working with, and हम्म they're a bit skeptical, they are a bit doubtful, what would you tell them from I your would always tell them to go for it. I will always tell them कि अगर आप ये करेंगे तो आपको 100% फायदा ही होने वाला है, बिकॉज मुझे उससे बिकॉज आई एम द लिविंग टेस्टिमनी ऑफ इट ना, सो मैं उनको हमेशा यही बोलूंगी कि गो फॉर इट। दैट्स व्हाई एक्चुअली माय सिस्टर इज काइंड ऑफ माय फर्स्ट बेबी, सो आई एम वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी केयरिंग, लाइक जो भी है उसकी तरफ जो फीलिंग है ना वो आई डोंट थिंक किसी और के लिए है। तो उसको भी मैंने when she was going through like वो अभी सीए कर रही है, तो when she was going through all these things, my my parents were very scared because वो हमेशा से एक strong लड़की रही है हमारे घर में, like I was the one who was like very scared and everything, but वो हमेशा से बहुत ज्यादा ब्रेव बच्चा रहा है हमारे घर में, और जब वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी due to the circumstances and she was into the depression, my parents also got scared, but at that time I was not scared because I know कि आई न्यू कि ठीक है ये चीज होती है और इसके लिए कुछ उपाय है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते। तो उस वजह से फिर मैंने तब आपसे इंट्रोड्यूस किया था उसको, एंड ही हैज डेफिनेटली आई आई कैन टोटली लाइक मतलब अश्योर यू कि वो पहले जैसे वो चीजों से जा रही थी एंड जितनी निगेटिव थी कुछ चीजों के लिए, आफ्टर हैविंग सेशंस विद यू शी हैज बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है उसमें, बहुत ज्यादा मतलब चीजों की तरफ देखने का जो नजरिया है वो चेंज कम्प्लीटली हो गया है उसको। उसका रिजल्ट भी मिला एक्चुअली उसके बाद, पास्ट वन ग्रुप, नाउ नाउ शी इज वर्किंग ऑन सेकंड ग्रुप, तो वो भी चल रहा है उसका। तो शी हैज ऑल्सो थॉट कि ओके ठीक है अभी ये सब हो जाएगा तो मैं प्रॉपर वापस से सेशंस ज्वाइन करूंगी अच्छे से, बिकॉज शी वांटेड टू गिव, क्योंकि सेशंस करेंगे तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा सेल्फ वर्क के लिए, एंड नाउ शी इज नॉट इन दैट स्टेट कि उसको किसी और चीज के लिए भी टाइम डाइवर्ट करना है। तो नाउ शी इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन हर एग्जाम, तो दैट्स व्हाई अभी वो नहीं कर रही है, बट शी इज लाइक आई एम 100% श्योर शी इज गोइंग टू ज्वाइन द सेशंस आफ्टर हर एग्जामिनेशन। सो इवन इवन माय अदर सिस्टर इज देयर, जो मेरी अंकल की लड़की है छोटी, तो शी इज ऑल्सो लाइक शी इज वर्किंग नाउ, so she's also going through so many things in life, so basically adulting is happening with them now and they are understanding
they're getting reality hits of life and everything. So और बचपन से कुछ traumas तो हर किसी के थोड़े बहुत होते ही हैं. तो I'm also trying to convince her for like अभी वो इस चीज स्टेज में है कि क्योंकि थेरेपी करने की जरूरत क्या है. एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हर कि ओके व्हाट इज द नीड ऑफ थेरेपी, हाउ विल इट हेल्प यू. एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू टेल हर कि ओके थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से देख के या मेरे इसमें से देख के यू कैन रियलाइज कि ठीक है इस चीज. बट हाँ जस्ट द थिंग इज कि आई एम नॉट गोइंग टू लाइक पुश नहीं कर सकती हूँ मैं उनको बेसिकली, बिकॉज अगर मैं पुश करूंगी तो देन दे विल बी लाइक व्हाई आर यू पुशिंग इट एंड एवरीथिंग. सो और शायद निगेटिव चीज में चला जाए. तो मैं उनको बस कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि दिस विल हेल्प यू. इवन देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं उनको भी कोशिश कर रही हूँ कन्विंस करने की टू गेट थेरेपी. बट या दे आर लाइक ओके देखते हैं इस जोन में है अभी. तो आई थिंक दे विल डेफिनेटली टेक सेशंस इन लाइक सम डेज आई थिंक. Thank you so much for sharing all the insights, for sharing your experience, for sharing your journey with me and all the audience who is going to watch this video. Thank you so much from the heart. I feel so privileged to offer these things to you because my agenda is always like serving one soul at a time. And I know you have worked so much again and again. I'm saying the same thing because I still feel so happy, so satisfied, so content whenever I think about you because you have done a tremendous job in your life in working on yourself and you are still there that okay, I want to work, I want to reach there, I want to do this, I want to and this Yes, week actually, already. yes, actually, I was going to come on this. I still have some goals to achieve, so I will always come back to you. I know that I can always come back to Mami anytime, and there are some goals that we have set for ourselves. So first of all, like let's get done with this, and then maybe I'll focus again on No. those goals now. Any last word before we wrap up the session you want to tell to the audience? Any Um, advice you want to give as a person who is now mature, who has healed a lot of traumas, I would say. Any advice, anything you want to say before we wrap up? सो जो भी इंसान ये ऑब्वियसली ये सेशन देखेगा, वीडियो देखेगा, दैट पर्सन इज हियर बिकॉज दैट पर्सन हैज डिसाइडेड टू चेंज समथिंग अपनी खुद की लाइफ में. सो सो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है बताना कि इट्स ओके, वी ऑल गो थ्रू सम काइंड ऑफ नॉनसेंस एंड सम काइंड ऑफ ट्रॉमास एंड दीज थिंग्स आर actually only making us stronger. The only thing we need is have proper guidance, proper guiding light. And अगर आप आंसर्स ढूंढने जाएंगे, मतलब आपको सही क्वेश्चंस होंगे और आपको आंसर्स ढूंढने जाएंगे तो आपको 100% सामने से हेल्प मिलेगी. यू जस्ट हैव टू सीक दैट. मतलब आपको बस हाथ आगे बढ़ाना है एंड आपको कंप्लीटली ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे या जो भी इंसान आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कीजिए एंड जस्ट डू द वर्क. जस्ट डू द वर्क नो मैटर व्हाट. आप किसी भी चीज में से गुजर रहे हैं, अच्छा है बुरा है, रोना आ रहा है, जो भी है, रोते रोते भी करना ही है. नो मैटर व्हाट, जस्ट डू इट. नथिंग. और आफ्टर अ पॉइंट यू विल गेट थ्रू इट. दैट्स इट. ओनली वे टू गेट थ्रू इट इज लाइक, मतलब ओनली वे आउट इज थ्रू इट. दैट तो बेसिकली आई थिंक इट्स ओके. वी ऑल काइंड ऑफ हम इस सब इन चीजों में से जाते हैं. तो इट्स ओके. Just love yourself, be kind to yourself, trust your therapist or your friend, whoever is helping you, and just do the work that is need to be done. You so much. I really appreciate you for thank. Now I'll Thank you for having me and making me part of this. I feel so happy because मुझे भी एक मौका मिला just to like reflect back on my life, how many changes have been there. And actually ये सब अभी 2025 का beginning है और ये सब शुरू हुआ है जनवरी 2022 से. So ऐसा भी नहीं है कि बहुत साल हो चुके हैं. But the thing is कि जिस मोमेंट से आप शुरू करना चाहते हैं changes करना, you can always change your life from that moment. thank you so